Hello kids, in previous video we learned about the history chapter, who, where and why and when. We have completed the chapter. Now we have come to the geography portion of our SST subject. In geography our first chapter is regarding resources. In this chapter we will be discussing introductions. We will go through the types of resources. In the introduction, we will learn what is resources. What are the types of resources? Then we will move about the understanding of various resources. We will understand about what are resources actually and how they are playing a significant role in human nature. In this chapter, we will talk about the conservation of resources, which is very important topic. Dear students, conserving the resources is utmost responsibility of human beings, because until and unless we don't put a habit of conserving the resources, in the future we are going to lose a lot of quantity of resources. We will speak about the use of resources, how they are useful, and in the last part of the chapter we will speak about the importance of resources, how they are important in our day-to-day life. First of all, define the resources. This is the definition of resources. What are actually the resources? What actually it means? The resources provided by nature which satisfy our basic needs and are used by us in various forms. यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे सबस्टेंस, ऐसे चीजें बनी हुई है जो हमें नेचर, प्रकृति के द्वारा मिलता है और हमारी बेसिक नीड, जो मूलभूत हमारी डिमांड है, हमारी आवश्यकता है, उसको पूरा करते हैं. That may be in various forms. वो कई रूपों में हो सकता है. रिसोर्सेज नेचुरल हो सकते हैं, ह्यूमन मेड हो सकते हैं, आदमी की बनाई हुई मशीनें हो सकती हैं, पानी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल है. इसी तरह रहने का घर, जंगल, लकड़ी, खाने के अनाज and number of things or any substance which are very useful for our basic needs. This is the definition of resources, what it means. The value of resources. Actually, what are the value of resources? Means worth of an object which is very useful for our human beings. What are its values? If we talk about the water, if we talk about the air, if we talk about the various other living being objects, what are its values? What its worth means for us? What its significant for our need? हमारी जरूरतों के लिए उसकी क्या कीमत है, उसकी क्या जरूरत है, वो कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसके बारे में हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं. फिर आता है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. Natural resources means which are available naturally in the atmosphere, in the environment. Natural resources means that may be plants, that may be water, may be ocean, may be rivers, may be stones, and number of natural things which are found in the nature. Nature provides us for our need. Those are called natural resources. Human-made resources means that has been made by the human beings अपने need के लिए. Maybe machines, human beings, any invention जो human being ने अपने लिए invention किया है. फिर थर्ड पोर्शन आता है ह्यूमन इटसेल्फ.
ह्यूमन खुद एक रिसोर्सेज है, आदमी, मानव का रिसोर्सेज मतलब वो अपने नीड को पूरा करता है, अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, देश को। तो ह्यूमन बीइंग का नेचर उसका क्या है, उसका खुद का रिसोर्सेज यानी उसका नॉलेज, उसके अचीवमेंट्स, ये ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज। तो तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं मेनली, मुख्यतः जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो तीन तरह के हैं, यानी नेचुरल प्राकृतिक रूप से मिलने वाले, ह्यूमन मेड जिसको मानव द्वारा निर्मित है, मशीनें हो सकती है, कृत्रिम रूप से कोई ऑब्जेक्ट है, कोई हमने चीजें बनाई है जो मार्केट में हमें अवेलेबल है, और तीसरा है ह्यूमन खुद यानी मनुष्य खुद, जिसमें उसका नॉलेज हो सकता है, उसके रिलेशंस, उसके अचीवमेंट्स, सोसाइटी को क्या क्या उसका देन है। तो ये टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। स्टूडेंट, अब हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मैंने पहले बताया था आपको कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन हिमसेल्फ। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे प्लांट या वाटर, when we get water from the nature for our basic needs, we get plants for wood purpose, we get crops. These are the natural resources which are, when we talk about the natural resources in details, we classify them into many parts. The classification of natural resources का करने का मतलब ये होता है कि हमें रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा गहराई में ज्ञान मिले। जैसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी वो कैसे डेवलप हुए थे। कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी संसाधन, रिसोर्सेज का हिंदी में होता है संसाधन, कोई भी संसाधन जो मानव यानी हम इंसान यूज करते हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था, उसका विकास कैसे हुआ था। तो उसके आधार पे 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर। एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि वो जिस फॉर्म में हमें नेचर में मिले थे उसी में हम यूज कर रहे हैं, जैसे वाटर, पेट्रोलियम या कोल, ये नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज है। एक्चुअल फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं। एनर्जी बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल, हम ट्रेन चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल गाड़ियों में और जो करते हैं हम। फिर दूसरा पोर्शन आता है कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनसे कुछ चीजें बनाई जाती है, जो पोटेंशियली पावरफुल होते हैं लेकिन ज्यादा यूज नहीं हो रहे हैं, स्टिल उनके बारे में एक्सप्लोरेशन ज्यादा नहीं हुआ है और वो पोटेंशियलिटी रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ज्यादा वैल्यू बेस्ड रिसोर्सेज हैं। जैसे हमने ले लिया यूरेनियम। यूरेनियम एक बहुत ही पोटेंशियल रिसोर्सेज है। भारत में लद्दाख और केरला के जो समुद्र तट है वहां पे हमें थोरियम मिलता है। थोरियम भी एक पोटेंशियल रिसोर्स है। थोरियम, इनसे हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको बोला गया है पोटेंशियल, बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी इन बिग वे। तो ये यूरेनियम और थोरियम पोटेंशियल रिसोर्सेज हो गया। एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब जिस फॉर्म में होते हैं नेचर में, वहां से हम उनको एक्सकेवेट करते हैं, उनको डेवलप करते हैं और हमारी नीड के लिए यूज करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, यानी उनकी उत्पत्ति के आधार पर। ओरिजिन मतलब उनका जन्म कैसे हुआ, वो कैसे बने थे, हाउ दे बिकेम रिसोर्सेज अल्टीमेटली। तो उनके उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है कि any resources which was produced by the living things, living being substance के द्वारा बना हुआ कोई भी जीवित चीज, जैसे प्लांट हो गया, वाटर हो गया,
या ट्रीज या कोई भी लिविंग जो ये क्रिएचर होता है, जीव होता है, कोई भी जीवित जीव के द्वारा बायोटिक। ये बायोटिक यानी जो नॉन लिविंग है, जैसे सॉरी यहां वाटर नहीं, जैसे वाटर या हो गया स्टोन, ऐसे जो रिसोर्सेज है जो एबायोटिक है और हमारी नीड को पूरा करते हैं, वो हो गए दूसरा क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन में आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है कि उनको पुनः हम पैदा कर सकते हैं, उनको पुनः उनका रूप बनाया जा सकता है, उनको फॉर्म किया जा सकता है, उनकी उत्पत्ति की जा सकती है, यानी जिनको वापस हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, जिनको दोबारा हम पैदा कर सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। उस आधार पे एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं, जो अनलिमिटेड है, जो नियर फ्यूचर में खत्म होने वाले नहीं है। जैसे रिन्यूएबल में हो गया सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, एक हो गया सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। फिर आता है नॉन रिन्यूएबल, यानी ओल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जिनका स्टॉक लिमिटेड बचा है, नेचर में डिगिंग किया है हमने, उनको पैदा किया है, उनको डेवलप किया है, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल है, उनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता। उनका स्टॉक भी जमीन में या खान में या खनिज में, माइंस में लिमिटेड है, उनका जो अवेलेबिलिटी है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी उनका जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको बंटवारा करते हैं कि कौन सी चीज कहां पे मिलती है, कौन सा रिसोर्सेज संसाधन कहां पे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा संसाधन कहां पे कम होता है, कौन से संसाधन की उपलब्धि ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड एंड यूबिक्विटस। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो उस लोकल जगह पे मिलते हैं ज्यादा। जैसे सांगरी की जो सब्जी बनाते हैं, एक रिसोर्सेज है, वो सिर्फ राजस्थान में मिलती है, ये एक लोकलाइज्ड रिसोर्सेज है। लेकिन आप देखेंगे कि पोटैटो हर जगह मिलेगा, ठीक है, इसी तरह ऑनियंस हर जगह मिलेंगे, जो अवेलेबल एवरीवेयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन लोकलाइज्ड क्या हो गया, उस लोकल जगह पे। जैसे एक मैंगो आता है अल्फांसो मैंगो सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मिलता है। ये अल्फांसो मैंगो का बाकी जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, तो ये हो गया लोकलाइज्ड। तो ये हमारा हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, आपको समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, देयर ओरिजिन, देयर रिन्यूएबिलिटी एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, टाइप ऑफ रिसोर्सेज में दूसरा पर्सन आता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि एनी रिसोर्सेज वी फाउंड इन नेचर, वी फाउंड इन ए स्पेसिफिक फॉर्म। अगर उसकी फॉर्म को, ओरिजिनल फॉर्म को हम चेंज करके कुछ दूसरा चीज बनाते हैं, जैसे आयरन ओर से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे स्टील बन गया, स्टील बना दिया हमने आयरन ओर से, तो इसका चेंज हो गया फॉर्म। इसी तरह हमें स्टोन से सीमेंट बना दिया, तो इसका फॉर्म हो गया चेंज। जब उसका रूप में बदल जाता है, आदमी अपनी जरूरतों के हिसाब से किसी भी संसाधन के ओरिजिनल रूप को बदल के कुछ नई चीज जब बनाता है, तो वो होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उसको बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। कोई भी अपने
इस्तेमाल करने वाली कोई भी चीज जो मशीनों से उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, उसका जो चेंज हो जाता है क्या, तो इंसान अपने फायदे के लिए, अपने यूज के लिए, तो ऐसे रिसोर्सेज को ह्यूमन मेड, मानव निर्मित रिसोर्सेज बोला जाता है। फिर लास्ट तीसरा आता है, तीसरा और अंतिम, ह्यूमन हिमसेल्फ, यानी इंसान खुद भी एक रिसोर्सेज है। व्हाई ही इज रिसोर्सेज, व्हाई इट इज रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स हैव स्किल्स, यानी उसके अंदर कौशल है, कोई चीज करने का कला है, हुनर है, उसमें टेक्निक है। दूसरा है नॉलेज, उसको ज्ञान है, उसको कई सारी चीजों को कई सारे तरीके से करने का कई प्रकार का ज्ञान है, नॉलेज। फिर आता है लेबर, उसको मेहनत करने की हिम्मत है, उसमें काम करने की क्षमता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, उसने अपने मेंटली एबिलिटी के अनुसार टेक्निक्स पैदा की है, कई तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है, कई तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट किए हैं जो ह्यूमन बीइंग के खुद के लिए, इस दुनिया के लिए बहुत फायदे की चीजें हैं। उसने कई तरह की मशीनें बनाई है टेक्नोलॉजी से, उसने कंप्यूटर बनाया है। तो एक तरह से इंसान खुद भी अपने आप में क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, वो खुद भी अपने आप में एक संसाधन है, संसाधन। तो ये हो गए 3 तरह के रिसोर्सेज जिनको मैंने आपको डिटेल में समझाया। अब इसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बाद हम पढ़ेंगे द रिसोर्सेज कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण यानी बचाना। हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उसको बचा कैसे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इफ वी केयरफुली यूज एंड जुडिशियली यूज करते हैं अगर हम रिसोर्सेज, इफ वी यूज द रिसोर्सेज whether it is human made or natural resources, if we use them carefully and judiciously, इसका मतलब क्या हुआ? केयरफुली का मतलब है कि हम सावधानी से यूज करें, जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करना है। जुडिशियसली, जितनी हमें आवश्यकता है। अगर हमें घर में 1 बकेट पानी से अगर नहाने में हमारा काम चलता है तो 2 बकेट पानी खराब करने से हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते। हमें कंजर्वेशन तभी कर सकते हैं जब हम न्याय के साथ जुडिशियसली यूज करते हैं, यानी जितनी आवश्यकता है उतना ही अगर हम रिसोर्सेज का, वेदर इट इज नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, उनको हम अगर केयरफुली, सावधानी से, जुडिशियसली यूज करें तो क्या होगा? इट विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होगा? डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब क्या होगा? वो खत्म नहीं होंगे, वो क्या नहीं होंगे? खत्म नहीं होंगे, एग्जॉस्टेड नहीं होगा। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे यहाँ सारे रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम पेट्रोलियम का इतना यूज करेंगे कि एक दिन आएगा कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, उससे क्या होगा? अगर पेट्रोलियम खत्म हो गया, हमारा व्हीकल्स नहीं चल पाएंगे, इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगा हमें, we will not get the energy, vehicle won't be able to run on the roads, industries won't be running, it will be shut down. तो अगर जुडिशियसली और केयरफुली हम संरक्षण नहीं करते हैं, कंजर्वेशन नहीं करते हैं रिसोर्सेज का, तो और अगर प्लांट्स को हम ज्यादा काटते हैं, उनको हम तो लकड़ी नहीं मिलेगी, हम घर नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, देयर आर लिमिटेड। तो हमें नए प्लांट्स भी लगाने हैं। अगर प्लांट को काट रहे हैं, हम ट्रीज को काट रहे हैं, पेट्रोलियम को यूज उतना ही करेंगे जितनी हमें जरूरत है। इन्हीं कंजर्वेशन की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो आजकल की विकास की जो यात्रा है, विकास यात्रा, इसमें जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, वो थ्योरी पे चलना चाहिए, कंजर्वेशन की थ्योरी पे। कैसे? कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पुरानी जो पीढ़ियां हैं हमारी, जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए अगर हम केयरफुली
रिसोर्सेज को नहीं बचा के रखेंगे तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें कंजर्व करना पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3R 3R की प्रिंसिपल पे चलना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल 3R का पहला R क्या कहता है, रिड्यूस, यानी कम कीजिए। क्या कम करना है, कंजप्शन, यानी जो हम प्रयोग करते हैं, जो हम उपयोग करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का जो हम कंजप्शन करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो हम काम में लेते हैं, उनको रिड्यूस कीजिए। उसको क्या करना है, मिनिमाइज कीजिए, उसको कम कीजिए। उसको कंजप्शन को कम करने से, उपयोग को कम करने से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। दूसरा कदम कहां से बढ़ेगा हमारा, दूसरे हाथ से, यानी रिसाइकल, यानी पुनर्चक्रण। इसको क्या बोला जाता है, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण कैसे होगा, ओल्ड न्यूज़पेपर को हम किसी चीज को बनाने में काम ले सकते हैं, उसको बाहर फेंकना नहीं है, कचरा फैलाना नहीं है, स्वच्छ भारत का भी काम हो जाएगा। और रिसाइकल से क्या होगा, ओल्ड न्यूज़पेपर काम में आ जाएगा, हमें दूसरा प्लांट नहीं काटना पड़ेगा। अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर किससे बनता है, प्लांट से, लकड़ी से। अगर हम पुराना न्यूज़पेपर को ही किसी चीज बनाने में, कागज की चीज बनाने में काम लेंगे, तो वी नीड नॉट टू कट अनदर प्लांट, और एक पौधा या पेड़ खत्म नहीं होगा, उसको बचा सकते हैं। फिर तीसरा आता है रीयूज, यानी पुनः प्रयोग, दोबारा यूज करना उसको। यानी हम प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का या पेपर का बैग यूज कर सकते हैं, जिसको हम बार बार यूज ले सकते हैं। पॉलीथीन बैग को यूज करके हम फेंक देते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान तो होता ही होता है, हमारा पैसे का भी नुकसान होता है। क्यों ना हम ऐसा बैग बनाए कपड़े का, क्लॉथ का, जिसको बार बार यूज कीजिए। इसी तरह नॉट ओनली बैग, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। कुछ प्रिंसिपल है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। कैसे, रिड्यूस यूज, जैसे ऊपर बताया मैंने, मिनिमाइज कीजिए, उससे डिप्लेशन नहीं होगा। डिप्लेशन मतलब एग्जॉस्टेड नहीं होगा, चीजें खत्म नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्ट ऑल टाइप ऑफ लाइफ्स। जिंदगी में हर एक आदमी को, जिस तरह के लोग हैं, कोई भी जीव है, प्राणी है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। चीजों को यूज मिनिमाइज कीजिए तो डिप्लेशन नहीं होगा। रेस्पेक्ट कीजिए लिविंग बीइंग को। एटीट्यूड अपना ऐसा लाना है कि हमें रिसोर्सेज को रेस्पेक्ट देना है, जो नेचुरल है या नॉन नेचुरल, अननेचुरल, उनको हमें रेस्पेक्ट देते हुए फ्लोरिश ऑल लाइफ, लेट द ऑल लिविंग बीइंग्स फ्लोरिश इन दिस अर्थ। हर एक जीवन को फ्लोरिश होने दीजिए, उसको आनंद के साथ जीने दीजिए। वायलेंस, हिंसा और घृणा का त्याग करके लेट इट फ्लोरिश इन दिस गुड नेचर। फिर इससे क्या होगा, हम डैमेज, जो पृथ्वी है, हमारी जो माता पृथ्वी, जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें देती है, उसको हम डैमेज होने से बचा सकते हैं, यानी उसको नुकसान कम कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कंजर्वेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा रिसोर्सेज का चैप्टर। इसमें नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन आंसर का मैं, जैसे पिछले जो हिस्ट्री का चैप्टर में मैंने टेस्ट दिया था, इसी तरह इसका भी एक टेस्ट आपको सेंड करूंगा, उसके आंसर आपको सबमिट करने हैं। तो इसका मैं आपको पीडीएफ भी भेजूंगा, उसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। एंड बाकी कुछ डाउट्स होगा तो हम क्लियर करते रहेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।